Professor, hello. I'm going to revise you again about the some cookies concept. So here in a very easy manner. Client has a user and password. Okay. He put user here, password here, then he submit. In the first request, it is the first request. I'm talking about this request. First request. This I'm talking about this request. First request. This first request will go to server. Okay. This will create a session object. Now, this session object, okay, will be sent with the response of this request. Okay. Then we set a cookies. Okay. This session, I request something from server. Server with my username and password. Server created a session with session object. Then this session object ID will be passed to the client end. Client end has the information about the session ID. Now this session ID will connect with this for the next conversation request. When I will give a request, I will request with the help of this cookies. Request with session ID, and then response will be there. So first response will be there with we in first response will be create cookie. So little bit more time is there. We increase little bit more time. टाइम ना थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसके बाद सब्सिक्वेंट में वो टाइम जो है डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक बार हमारा सेशन क्लियर हो जाता है. फाइनली जो है हमें आप ये जो पूरा काम है वो गेट पोस्ट से होता है. तो आप इसको थोड़ा समझिए. देखिए सिंपल सा अगर समझना है तो सिंपल सा अगर आप समझना है, देखिए कंटेनर ने पहले जो है सिंपलिसिटी में समझिए. कंटेनर से कुकीज गया, कुकीज एचटीटीपी पहले रिस्पॉन्स में कनेक्ट हुआ. कनेक्ट होने के बाद अब सर्वर क्लाइंट एंड पे कुकीज है. अब जो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट है वो कुकीज के थ्रू ही पास होगी, क्योंकि कुकीज में सेशन की आईडी है, इसी से वो कनेक्ट हुआ है कंटेनर, और ये जानता है कि जो मामला है वो इसी से मैनेज होगा. ठीक. अब देखिए थोड़ा सा और टेक्निकली कैसे होता है कि भाई आप लॉगिन आईडी पासवर्ड करते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं. आप जो है लॉगिन आईडी यहाँ पे पासवर्ड डालें. ठीक है. अब ये लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने पे लॉगिन जब सक्सेसफुल होता है तो सेशन आईडी क्रिएट होता है, मतलब सेशन ऑब्जेक्ट बनता है. सेशन ऑब्जेक्ट जब बनता है तो हम क्या करते हैं, सेशन आईडी को रिटर्न करते हैं, उसको फिर स्टोर करते हैं डेटाबेस. फिर हम सेट करते हैं कुकीज को कि उसका सेशन आईडी है. फाइनली जो है हम सेशन आईडी में यूजर नेम क्रिएट डेटा और एक्सपायरी डेटा देखते हैं, फिर उसका लास्ट एक्सेस डेटा देखते हैं. ठीक है. अब उसके बाद जब एक पहला सेशन क्रिएट हो जाता है, पहला कनेक्शन हो जाता है, फिर हमारा HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल एक्टिवेट होता है मार्केट में. और जब एक्टिवेट होता है तो वो सेशन आईडी के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है, और सर्वर जो है सेशन आईडी को मैच करता है और कंटेंट डिलीवर करता है. दिस इज लाइक अ प्योर कुकीज कॉन्सेप्ट. ओके. थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं.
when first client when first ever for a client first client send request to server, if the server wants to remember client information for the future purpose, then it would create a session of store the required session information in the form of session scoped attributes. Okay, server sends a corresponding session ID as the part first response, जिसको cookies कहते हैं. Client saves the session ID and send back to the server with every consecutive request, जिसको कहते हैं कि भाई connection established, आप काम कर लीजिए. By accessing session ID and corresponding session object, server can able to remember client information across multiple requests. This mechanism is nothing but session management by using session API. अब इसी को, ये जो मैकेनिज्म है, इसी को सेशन मैनेजमेंट कहते हैं और ये सेशन एपीआई से मैनेज होता है. और सबसे अच्छी बात क्या है कि पूरा एंटायर सेशन जो है सर्वर साइड में स्टोर हो जाता है. Now, in this mechanism, entire session information will be stored at the server side and only session ID will be maintained by the client. Client के पास सिर्फ session ID maintain होती है. ठीक है? ओके, तो ये जो है हमारा मामला है कुकीज का. ठीक, तो आप थोड़ा सा और कुकीज एक बार एक्सप्लेन अच्छे से समझ लेते हैं. कल हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर से उसका इंट्रोडक्टरी सेशन था. A cookies is a small piece of information that is persisted between the multiple client requests. Okay, a cookie has a name, a single value, and optional attributes such as comment, path, and domain qualifier, a maximum age, and a version number. Okay, how cookie works? By default, each request is considered as a new request. In a cookie technique, we add cookie with response from server. So cookie is stored in a cache of the browser. After that, if request is sent by the user, cookie is added with default by. Thus, we recognize the user. Thus, we recognize the user as the old user. Okay. Now, कितने टाइप के कुकीज होते हैं? जहां पे हमको सेशन मेंटेन रखना होता है, जहां पे हमको सेशन मेंटेन नहीं रखना होता. जहां पे मेंटेन नहीं रखना होता है वो नॉन परसिस्टेंट कुकीज, जहां मेंटेन रखना होता है वो परसिस्टेंट कुकीज. तो जो persistent cookie है, it is valid for single session only. It is removed each time when user closes the browser. Persistent cookie में क्या है कि भाई it is valid for the multiple session. It is not removed each time when user closes the browser. It is removed only if user log out और sign out. कभी-कभी आप देखते हैं ये काम गूगल में या फेसबुक में होता है कि भाई आप ब्राउजर कट कर देते हैं, लेकिन फिर भी जब ओपन करते हैं तो सेशन मेंटेन रहता है. इसी को कहते हैं persistent cookies. बाकी ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग समझे थे पिछली बार थ्योरेटिकली. मैंने आपसे ये कहा था कि हम इसको और एक्सप्लेनेटरी मेथड्स में थोड़ा डिटेल में देखेंगे कैसे काम. javax.servlet में javax.servlet.http कुकी जो है क्लास प्रोवाइड करती है फंक्शनैलिटी ऑफ यूजिंग कुकीज, और ये कुकी मेथड है और वही कुकी का स्ट्रिंग नेम और वैल्यू. फिर आप पब्लिक वॉइड सेट द मैक्सिमम एज ऑफ द कुकी. पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, ये होता है पब्लिक स्ट्रिंग गेट वैल्यू चल रहा है. फिर पब्लिक आप स्ट्रिंग का नेम लेते हैं, वैल्यू लेते हैं, फिर उसको सेट करते हैं. तो अदर मेथड्स रिक्वायर्स यूजिंग कुकीज, आप और ऐड कुकी और गेट कुकी.
तो जब ऐड कुकी और गेट कुकी होती है तो फाइनली आप कुकी का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसको सेशन ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसको आप सेशन ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसको आप सेशन ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये जो सेशन ऑब्जेक्ट आप कहते हैं ना, यही फर्स्ट टाइम क्रिएट होता है और क्रिएट होने के बाद आप उसकी एज डिफाइन कर देते हैं, कितने सेकंड के लिए हो रहेगा। फाइनली उसको आप रिक्वेस्ट और रिस्पांस मॉडल में इनर लूप लगाते हैं, फिर इनर लूप लगाने के बाद आप नाम और वैल्यू लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल है कुकीज का कि आप एक नाम लेते हैं, फिर वही जो मैंने आपको भी समझाया था कि कैसे वो काम करता है। तो काम ऐसे करता है कि भाई HTML जो होता है इनपुट, ये जो इनपुट टेक्स्ट है, इनपुट टेक्स्ट का मतलब यूजर नेम पासवर्ड की बात हो रही है। यूजर नेम पासवर्ड इनपुट करता है, इनपुट करने के बाद आप सर्वलेट एक्टिवेट होता है, वहां पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है सीके के नाम से। और ये जो सीके है, फिर ये पहला टाइम सीके ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और रिस्पॉन्स में क्लाइंट के पास गया। अब क्या होगा, फिर सर्वलेट जो है एक्सटेंड करेगा। अब आपके पास रिस्पॉन्ड है और रिस्पॉन्ड में कुकीज को ऐड करके और क्लाइंट के रिक्वेस्ट को फर्दर वो पूरा करता रहेगा, क्योंकि सेशन इनिशियलाइज हो चुका है और उसकी ये वेब फाइल बन जाती है। कैसे वेब फाइल सर्वर के एंड पे ये जो वेब फाइल आप बना देते हैं कि भाई सर्वलेट 1 सर्वलेट 2 ऐसे करके वेब फाइल बन जाती है। तो जो मैंने आपको समझाया कि जो कुकीज है उसकी सब सेशन मैनेजमेंट की सब इंफॉर्मेशन सर्वर एंड पे होती है और क्लाइंट एंड पे सिर्फ सेशन आईडी होती है, ठीक है। तो ये है पूरा कुकीज जो आप लोग जानते हैं। कुकी को अगर एक लाइन में समझना है तो कुकी सबसे आसान समझना है। कुकी इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड एट अ क्लाइंट एंड। बस सेशन आईडी की इंफॉर्मेशन जो हम क्लाइंट पे भेजते हैं वही कुकीज है। और कुकीज को करने के लिए प्रोसेस है भाई, इंडेक्स एचटीएमएल चाहिए, लिंक एचटीएमएल चाहिए, लॉगिन एचटीएमएल चाहिए, ये तो क्लाइंट एंड पे है। फिर लॉगिन सर्वलेट चाहिए, फिर लॉग आउट सर्वलेट चाहिए, प्रोफाइल सर्वलेट चाहिए, ये सर्वर एंड पे। और ये वो फाइल्स हैं जो हमें मदद करती हैं कैसे काम करता है कुकी। तो सेट कंटेंट टाइप, प्रिंट राइटर आउट, ठीक है। आप पासवर्ड हाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई पोस्ट करके हमने कंटेंट को मंगाया, फिर क्या होता है पासवर्ड चेक होता है भाई, फिर कुकी क्रिएट होती है। क्रिएट होने के बाद अगर पासवर्ड में एरर होता है तो आगे भेज देते हैं, नहीं एरर होता है। अगर कनेक्ट हो जाती है पासवर्ड तो हम लॉगिन कर देते हैं, फाइनली उसको लॉग आउट करना पड़ता है। तो यही चीज है जो हमें नॉर्मल अपने लाइफ में करते हैं, उसका जो मैनेजमेंट है, सेशन मैनेजमेंट है, वो होता है कुकीज के थ्रू, ठीक है। अब आते हैं हिडन फॉर्म फील्ड्स क्या क्या होती है। हिडन फॉर्म फील्ड्स क्या होती है? इन अ केस हिडन फॉर्म फील्ड is an invisible text used for the maintaining the state of an user। ये यूजर से दिखाई नहीं देता, लेकिन ये टेक्स्ट है कि जो सेशन आईडी की जो इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज हो रही है, इसको हम हिडन फॉर्म फील्ड्स के थ्रू ही मैनेज करते हैं, ठीक है। तो हिडन फॉर्म्स फील्ड के थ्रू इस वजह से मैनेज करते हैं क्योंकि यूजर को हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। और ये बात तय है कि अगर कोई भी अगर कोई भी आपका कोई कनेक्शन हो रहा है तो वो कनेक्शन जो है हमेशा किसी न किसी इनपुट के थ्रू हो रहा है जो आप क्लाइंट दे रहे हैं और सर्वर उस रिक्वेस्ट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हिडन फॉर्म फील्ड्स हैं ये कमेंट्स में यूज होते हैं वेबसाइट के चीजों को समझने के लिए डेवलपर एंड पे। हम क्या करते हैं, पेज की आईडी और पेज के नाम को हिडन फील्ड में डाल देते हैं और उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर देते हैं, ठीक है।
उसकी एडवांटेज क्या है? it will always work whether cookie is disabled or not. डिसएडवांटेज क्या है कि हमेशा मेंटेन रखता है सर्वर साइड पे, एक्स्ट्रा सबमिशन हर पेज की रिक्वायर्ड होती है, टेक्सचर इन्फॉर्मेशन यूज हो सकती है। तो ये एक तरीका है कुकीज का ही मतलब को मैनेज करने का, कि भाई कुकीज की तरह ही सेशन मैनेज करने का, कि कैसे हम उस सेशन को मैनेज करते हैं। कुकीज को एक तरीका है, हिडन टेक्स्ट नेम राइटिंग अलग तरीका है। यहाँ पे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं, फिर गो लिखते हैं, सर्वलेट क्रिएट होता है, तो वेलकम यूजर और एक वैल्यू क्रिएट होती है जो इनविजिबल टेक्स्ट फील्ड होती है, फिर नया सर्वलेट क्रिएट होता है, और अगर साइट में कोई कंस्ट्रक्शन है तो ऐसे चीजें शो हो जाती है। तो अब फंडामेंटली काम वैसे ही हो रहा है, चाहे हम कुकीज के थ्रू कर रहे हैं चाहे हिडन फाइल के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि हम एक्सटेंड किए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल लिए और प्रिंट किए हिडन नंबर, यूजर नंबर, ठीक है, सबमिट किया। वहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन रेज हो जाता है तो ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन रेज हो जाता है तो हम फाइनली अपना जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर देते हैं एज रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। ओके, एक नया टेक्निक है, जैसे कुकीज है, जैसे हिडन है, यूआरएल रीराइटिंग। यूआरएल रीराइटिंग में क्या होता है कि आप यूआरएल के कंटेंट को चेंज कर देते हैं। जैसे यूआरएल है ना, ये यूआरएल नेम वन वैल्यू, जैसे यहाँ पे हो, अब देखो ये है, ये ध्यान से देखो, अभी से ध्यान से देखो, नहीं आ रहा है। google.com, हाँ ये एग्जाम्पल अच्छा है। यहाँ पे देखिए google.com है, मैंने पहली दफा सर्च किया था, कुकीज जनरेट किया, कुकीज, और सेशन मैनेजमेंट जनरेट किया, सेशन मैनेजमेंट के लिए एक आईडी जनरेट की, आईडी जनरेट करने के बाद ये आईडी का अलग अलग आईडीज के नंबर को कलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने फर्दर बहुत सारे सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट किया है, क्योंकि ये सर्च इंजन है तो हर सोर्सेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है, इसीलिए चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक, अब इसमें जो है हम सीधे वेबसाइट पे पहुंचे हैं, वेबसाइट से जो वेबसाइट पे चीजें, जो वेबसाइट पे जरूरत है, जिस पेज यूज बेस्ट पेज को हम कॉल कर ले रहे हैं, तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने यूजर से छुपा रखी है। तो बहुत सारी हिडन फील्ड्स होती हैं जो टेक्निकल एंड पे सर्वर में को जरूरत होती है एक्टिवेट होने के लिए और सेशन को मैनेज करने के लिए, लेकिन उसकी इन जनरल कोई जरूरत होती है। ठीक है, तो यही समझाने के लिए मैंने आपको ये दिखाया। अब यूआरएल रीराइटिंग देख लेते हैं। यूआरएल रीराइटिंग तो को समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे जो, अब यहाँ पे देखिए पेज को हमको एक्सेस करना है, तो क्योंकि हम गूगल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो पूरा सेशन मैनेज हुआ है, उस पेज से कनेक्शन हुआ है, लिंक हुआ है, क्राउल किया है गूगल, फिर वहाँ पहुंचा है, क्राउल करना है। ठीक है, अब हम इसको जब क्लिक करेंगे तो लिंक करेगा उस वेबसाइट से लिंक करने के बाद इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पूरा मैनेजमेंट है गूगल का। हम क्या करते हैं यूआरएल रीराइटिंग में, नया नया टेक्स्ट को अपेंड कर देते हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से बस। और जैसे ये है, यूजर नेम है, रिस्पॉन्ड है, और हम सर्वलेट का नाम उसके साथ अपेंड कर दिए, तो यूजर को यूआरएल में पता चल जाता है कि भाई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड आ चुका है। ठीक, अब जी एचटीटीपी सेशन इंटरफेस क्या होता है? ये तो यही है कि भाई एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड आता है, कंटेनर जो है यूनिक आईडी बनाता है और यूनिक सेशन आईडी बनाता है। यही पूरा कॉन्सेप्ट है आपके एचटीटीपी सेशन का, जो हम लोगों ने समझाया अभी। फिर एचटीटीपी कैसे होता है कि भाई सेशन आईडी क्रिएट होती है, वो बुलियन में क्रिएट होती है हमारे हिसाब से, और ये इसमें ये इंटरफेसेस यूज होते हैं, गेट सिस्टम आईडी, गेट क्रिएशन टाइम, गेट एक्सेस टाइम, वो इनवैलिडेट। ठीक है, अब जो है आप एट्रीब्यूट को सेट करते हैं, मेथड को, इंटरफेस को सेट करते हैं, आप फाइनली इंटरफेस और मेथड को सेट करते हैं। और देखो यहाँ पे देखो एक रिस्पॉन्ड है, आउट करना है, तो आपने यहाँ पे
HRE हाइपर सर्वलेट 2 को लो वहाँ के सर्वलेट 2 को अपने उसके पास क्लाइंट के पास भेजना, और वो सेशन HTTP सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, और सेशन अगर फॉल्स हो जाता है तो वो जाएगा नहीं, अगर सेशन ट्रू रहेगा तब तो जाएगा, ठीक है। अब उसकी लॉगिन और लॉग आउट पेज वही सेम है कि HTTP का जो मॉडल है ना, HTTP मॉडल जो ये मैंने आपको दिखाया था, सेम है लॉगिन लॉग आउट पेज है कि एक बार सेशन क्रिएट होता है, एक बार सेशन क्रिएट हो गया, सेशन क्रिएट होने के बाद जब यूजर नेम और जब तक यूजर नेम और पासवर्ड वेरीफाइड है तब तक हम चीजों को देखते रहते हैं। तो आपका सर्वलेट पार्ट का जो कुकी सेक्शन है वो उसका कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग कर ली है, और ये मैं फिर कहता हूँ कि तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करेंगे। तो आपका कल हम लोग JSP और देख लेंगे, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। Request to other sources, session tracking, cookie, session tracking with HTTP session. Tomorrow we will go for JavaScript pages, JSP, implicit objects, scripting, standard actions, directives, custom tab libraries. Okay.